سے قرآن حدیث کو تو ہم مانتے ہیں، وہ تو ہو گیا ان کا ہم سے سوال، لیکن ہمارا ان سے جو ایک بھی سوال ہوا ہے اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے کے گیا۔ یہ کہتے ہیں نہیں اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ سوال اگر ایک آپ نے کرنا ہے تو ایک سوال کا جواب پھر ادھر ہماری طرف سے بھی سن کے جواب دے کے جائیں گے۔ ایک اصول ہونا چاہیے۔ اور محمد دین سیالوی صاحب کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب وہ براڈ کا کہہ کے گئے نا، براڈ ایک جو ہوسٹ ہو نا وہ نان بائیسڈ ہو، ان بائیسڈ، جو مطلب کسی کی سائیڈ نہ لے، چاہے وہ ہمارے اس سے نہ ہو، خیالات سے، ہمارے مذہب یا ہمارے اس سے نہ اتفاق رکھتا ہو، لیکن ان کے سے بھی رکھتا ہو نا، لیکن اس بیچ میں یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگوں کو بولنے کا نہ سوال کرنے کا موقع ہو نہ حق ہو، کیونکہ یہ اکثر میوٹ لگا دیتے ہیں، میں نے ان کو جی دیکھا ہوا سہیل بھائی مفتی جی صاحب جی تشریف لے آئے ہیں۔ مفتی مبشر شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویلکم مفتی صاحب۔ شالی صاحب کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے جناب؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، دعائیں ہیں آپ کی۔ الحمدللہ۔ اچھا یہ ٹرو مسلم صاحب آپ نے حوالہ پوچھا تھا، یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 127 ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، یہ جملہ لکھا ہوا ہے جلد نمبر 19 صفحہ 127، اور کتاب ہے اعجاز احمدی اور اس کا صفحہ نمبر ہے 18۔ اچھا یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ ایک تو غبی ہوتا ہے نا، غبی لکھا ہے انہوں نے، غبی کا مطلب تو جیسے سست بھی ہوتا ہے نا، اس طرح کا میرے کو۔ وہی بتا غبی، بات بھول جانے والا، جسے نادان کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، پسندیدہ لفظ نہیں ہے۔ مطلب اس کا معنی کوئی پازیٹیو میننگ میں نہیں آتا۔ جی پازیٹیو میں نہیں آتا، یہ نیگیٹو میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا تھا؟ جی جی اچھا اچھا، چلے ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، یہی میں نے حوالہ لینا تھا۔ ایک اور حوالہ لے لیں، روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ 410 ہے، اور زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے، اس کے اوپر بھی صفحہ 235 ہے جی براہین تو احمدیہ کا۔ جی جی یہ جلد 21 اور صفحہ 410 کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ جی بالکل، میں نے کہا براہین احمدیہ کا صفحہ 235 ہے، آپ نے بالکل روحانی خزائن کا صفحہ بتایا۔ جی پڑھ کر سنائیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا، درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے، جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے۔ جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہیں، اکثر ابو ہریرہ ان کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن سے احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ انہی سے مروی ہے، تو ان کو یہ کہا کہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا، قرآن کے سمجھنے میں ناقص تھے، پہلی بات۔ دوسری بات ان کی درایت کمزور تھی۔ تیسری بات وہ نقال تھے، نقل کرنے کا مادہ تھا۔ اور چوتھی بات فہم ان کا کم تھا۔ پانچویں بات وہ اکثر غلطیاں کرتے تھے۔ چھویں بات کہ وہ ٹھوکر کھاتے تھے۔ 6 باتیں منسوب کی ہیں مرزا قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور یہ صرف حضرت ابو ہریرہ کی ہی توہین نہیں،
सारे सहाबा की तौहीन करता है मिर्जा कादियानी। जी, यहाँ शाह साहब मैं ये भी बात अर्ज करूं, मिर्जा कादियानी साहब ने जो एक और झूठ बोला है, उन्होंने कहा तफसीर सनाई में ये सारी बातें हजरत अबू हुरैरा के बारे में लिखी हूँ, जो कि झूठ है। तफसीर सनाई में ऐसी बातें नहीं है। नहीं है, कहते हैं तफसीर सनाई से पीछे तफसीर सनाई का जिक्र है, तो ये झूठ बोला। अच्छा, ये सातवीं चीज कर लें कि साहिबे तफसीर निसाई की तरफ इन्होंने झूठ मंसूब की है। अच्छा, अगली बात ये है कि ये बात बराहीन अहमदिया के अंदर कह रहे हैं, और बराहीन अहमदिया वो किताब है कि मिर्जा कादियानी खुद इस किताब के मुतल्लक कहता है कि ये किताब मुझे इल्हाम हुई है, ये मैंने इल्हाम पा के ये किताब लिखी है। ठीक है, तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये मिर्जा कादियानी ने अपनी तरफ से बात नहीं की, बल्कि अपने खुदा काले कालू और यल्लाज से ये किताब उसको इल्हाम हुई थी। आबिद भाई, बात समझ आ गई है? हाँ जी, आ गई है बिल्कुल आपकी बात। आपने बड़े अच्छे अंदाज से समझाया और आसान लफ्ज़ों में। ये बात तो हर एक को समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, मैं आज आपकी साबका सारी हिस्ट्री जो है हमारे सामने, उसका एक नया रुख देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप ताइब हो चुके हैं और मिर्ज़ा कादियानी पे लानत कर चुके हैं, तो ऐसा ही है? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि वाकई मिर्जे ने बड़ी गुस्ताखियां की, बड़ी तौहीनें की हैं। चूँकि मैंने खुद वो अमर नज़ीर साहब की ब्रोड पे बैठता था ना, तो जब एक बात आपको सामने नज़र आ जाए तहरीरी शक्ल में, तो फिर तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। आप फिर भी अगर नहीं समझ सकते तो फिर आप गबी हो। मतलब एक सबूत दिखा दे बंदा दलाइल नहीं, के वो तो चलो साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो आपके ऊपर एक छाप लगी हुई थी कि आप कादियानी हैं, उससे आप नहीं, ताइब वो हो तो चुके हैं। अमर नज़ीर साहब हैं जो उनके साथ और बैठते हैं, वो तो मुझे कादियानी नहीं कहते। वो तो मैं तो उनकी मैं ब्रोड पे क्या कह कट्टर रहा हूँ, बैठा रहता हूँ। मैं अच्छा, क्या बोले। कह रहा हूँ, आप मेरी बात की तो तवज्जो ही नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आमिर नज़ीर साहब की बात या उनके साथ जो बैठते उनकी बात तो कर ही नहीं रहा। यार ये खान साहब माइक म्यूट करिएगा, नमरोज खान साहब। अच्छा, बात ये है कि मैं तो नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके मुतल्लक ये समझता था कि आप कादियानी हैं। आज से पहले जितनी भी आपसे गुफ्तगू हुई उसमें आपके अंदर कादियानी जरासीम थे, और मैं आपको कादियानी समझता था। ये अलानिया तौर पे, मैं कोई ढका छुपा तो नहीं। तो मैं कह रहा हूं आज की डेट के अंदर, आज जनाब 24 दिसंबर 2025 है, तो आज की डेट के अंदर क्या मिर्जा कादियानी के ऊपर आप लानत करते हैं? ये मैं तो देखे जिसने भी नबूवत का झूठा दावा किया है नबी मेरे पाक के बाद, जिसकी बात तो नहीं कर मैं रहा, तो सिर्फ उसके ऊपर लानत एक करता हूँ। बंदे के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसका नहीं मैं पूछ रहा। मिर्जा कादियानी के ऊपर क्या आप लानत करते हैं? और मिर्ज़ा साहब की आप बात कर रहे हैं, इनका मुझे अभी थोड़ी सी ना कोई कुछ परसेंट कन्फ्यूजन है कि उन्होंने जहाँ जहाँ नबूवत का दावा किया है जितनी बार, उतनी बार इनकार भी किया है, इकरार किया, इनकार किया। अच्छा, अगर नहीं, उन्होंने नबूवत का फकत दावा किया है तो उनके फिर तो वो दावा नबूवत के ऊपर तो आप लानत नहीं ना करेंगे। मैंने तो नहीं कहा आपको कि दावा नबूवत के ऊपर लानत करें। ये देखे ना, अभी एक शख्स सहाबा की तौहीन कर रहा है, नबी की। अब आपने खुद तस्लीम किया कि वो बिल्कुल नबी की भी तौहीन करती है, तो जो सहाबा की या नबी की तौहीन करता है, कि लानत का मुस्तहिक है कि नहीं? जी शाह साहब, मैं इसमें थोड़ा एंटर करूंगा कि आप इनको मजबूर न करें कि ये लानत करें, लेकिन बहरहाल ये समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपके रास्ते पर ही आ जाएंगे। जो उन्होंने बात की है वो जी जिशान साहब अभी खामोश हूँ। वैसे भी तो लानत, सियालवी साहब, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा। लानत तो एक दुआ है, और ये देखिए मुफ्ती मुबशर कालू साहब क्या कहती हैं। जी सुनिए, नहीं, उनके नजदीक दुआ ना, लेकिन मुसलमानों के नजदीक दुआ सुन तो ले नहीं जरा, है। मैं ऑडियो सुना रहा हूँ, सुन ले, पहले सुन ले। सर मैं फिर चला जाऊँ तो आप फिर आपस में बातें कर ले, क्या कहते हैं? ईशान साहब एक मिनट जरा दे दें, एक बंदे से पहले बात कर लें। ये कोई तरीका नहीं होता कि एक को छोड़ के दूसरे की तरफ आ जाए। देखिए, आप रुके, थोड़ा सा इंतजार कर, आपसे पहले मैं मुझे था। ऑडियो सुनाने दे एक जरा।
निशान साहब ऑडियो फिर आप तो मेहरबानी बताइए प्लीज, फिर आप तो बताइए प्लीज। माइक म्यूट करिएगा, मैं जरा आ रहा हूँ आपकी तरफ, नहीं मेरे थोड़ा तो सा फालतू इंतजार नहीं, उधर रहे गटराने में। माइक तो म्यूट करिएगा, मेहरबानी करिएगा यार, कमाल करते हैं यार। मरतबा लानत भेजी और फिर इसी पे बस नहीं किया कि 1000 मरतबा, बल्कि 1000 मरतबा लानत का लफ्ज लिखा और कई सफ़े उससे भरे। तो ये एक एतराज जो है, इसका जवाब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि दें। लानत गाली नहीं है, लानत दुआ है। जब अल्लाह ताला किसी पे लानत करता है, लानत का मतलब है खुदा की कुर्बत, खुदा की मदद और खुदा की मोहब्बत फरिश्त। जी तो आबिद साहब, आप नहीं चाहते कि मिर्जा साहब खुदा की कुर्बत में चले जाएं, खुदा की मोहब्बत में चले जाएं, खुदा के करीब हो जाएं? तो लानत तो एक दुआ है, तो ये दुआ समझ के एक दफा, कम से कम एक दफा हुज्जत कायम करने के लिए आप मिर्जा जी के ऊपर मेरा ये एक दुआ बात कर तो दें, सुन एक लेना, लानत भेज दें। बात तो सुन लेना। मेरा ये ईमान, ये अकीदा, इस बात पे यकीन नहीं है कि लानत एक दुआ है। लानत फटकार है। लानत का मतलब है रहमत के अपोजिट है, रहमत के मुतजाद है लानत। ये चले लानत नीचे को बैठे हैं दुआ निशान के साहब, इनसे ही पूछ लेते हैं कि लानत लानत को दुआ के ना, ये जाहिल बंदा ही कह सकता है, कोई आलम दीन नहीं कह सकता कि जो अच्छा, ये आप मुफ्ती मुबशर कालू साहब को जाहिल कह रहे हैं? हाँ, अगर उनकी आवाज़ है, मैं तो नहीं जानता उनको, तो ये जो कह रहे नहीं, थे ये कि तो लानत दुआ है, कादियानियों के ये जाहिल वो तरीन आदमी है है भाई, ये दीन का मुफ्ती, ये आलम नहीं हो सिलसिला है सकता। बहुत बड़े ये महान। कोई नहीं तो आप मुल्क- निशान साहब नीचे बैठे, इनसे पूछ लें। अच्छा, आप निशान साहब, ये लानत तो दुआ है, आबिद साहब आप इनसे पूछे, आप पूछे। ये लानत दुआ है या इसके क्या मानी है? हमारे नजदीक ये फटकार है, रहमत के अपोजिट है। जी, आप अल्लाह मुझे की बोलने फटकार दें, हो तुम पे। मुझे आप बोलने बताएं, दें। लानत क्या है आपके नजदीक? देखिए मुझे थोड़ा बोलने दें। देखें, ये लोग जिसको गुस्ताखी कह रहे हैं, अपनी तरफ से गुस्ताख बना रहे हैं, हालांकि इनके जो शिया भाई हैं वो तो ओ भाई, लानत बताओ ना, दुआ है या क्या है? आप एक तो उलझा दे बहुत मिर्जा साहब की तरह। मुझे सारी देखो, सारी जो गुफ्तगू है भाईजान, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। लानत आपके यहाँ नजदीक दुआ है या क्या है? इसका क्या मानी है? अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है ना, कि मदद या अल्लाह इन पर लानत भेज। अब अल्लाह ताला से हम जो भी मांग रहे हैं वो दुआ है। फटकार पर अपना गजब नाजिल कर, इसका ये मानी होता है ना? तो आपके यहाँ क्या? अल्लाह ताला की झूठों पर लानत हो, ये भी हम दुआ करते हैं। तो अब अल्लाह ताला से हमारा, जो बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है, मदद मांगता है और अल्फाज इस्तेमाल करता है कि या अल्लाह झूठों पर लानत भेज, या अल्लाह इन पर लानत भेज, वो बंदा तो दुआ कर रहा है। अब अल्लाह ताला अगर करता है तो ये तो अल्लाह ताला उसको कुर्बत दे रहा है, उसकी दुआ को कबूल करके। आपके नजदीक क्या है क्या नहीं है, वो जो दुआ कर नहीं रहा, वो बदुआ कर रहा है उनके लिए कि इन पर लानत हो, इनका बेड़ा गर्क हो। देखो, वो दुआ कर रहा है। अल्लाह ताला की हुजूर इंसान जो है गुजारिश कर सकता है, मदद के लिए पुकार सकता है अपने खुदा को, जो ये सारे काम करने पर कादर है। तो अल्लाह ताला ने जो खुद कुरान में कहा है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। तो ये अल्लाह उनके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में है वो, देखो अल्लाह ताला झूठों पर लानत करता है ना, इसलिए जो झूठा होगा तो उस पर लानत होगी। सच्चे की अल्लाह ताला तायीद करेगा, उसकी दुआ कबूल कर लेगा, उसकी पुकार कबूल करेगा, उसकी जो भी दिल में उसकी दिल आजारी हुई है उस पर मरहम रखेगा। ये तो अल्लाह ताला का अमल है। मुफ्ती मुबशर साहब, आपने आज कमाल कर दिया, एक नई बात। देखी जाओ जरा, पेड़ पे आ गया जरा। म्यूट रखें, बाकी सारे दोस्त म्यूट रखें। अब मुझे एक थोड़ा बात करने दे। देखे, मिर्जा साहब ने जो भी कहा है, जैसे भी कहा है ना, मौलवी साहब की हाशिया राई या बुख्तानबाजी इजाफे, वो मौलवी साहब के अपने हैं ना। मिर्जा साहब ने जो भी कहा है, जैसे भी कहा है, बस वही हक है, क्योंकि वो नबीउल्लाह है और नबी का ये मुकाम है कि वो सब की अदालत लगा सकता है। मौलवी मुबशर की भी। भाई, आप मिर्जा साहब को नबी मान के अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हो। बात सुन लो, मिर्जा साहब ने कहा ये दुआ है, तो आप उसको जबरदस्ती दुआ मान रहे हैं। आपको भी पता ये दुआ नहीं है। सुन तो ले। अब अगर बंदा कोई कहता है कि नबी ने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, ऐसे क्या वैसे क्या, भाई ये हक नहीं है। और जो ये काम करता है, अच्छा, ये जिशान साहब जरा थोड़ा सा रुकेंगे आप? थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा। मैं बड़ी पहले माजरा चाहता हूँ कि आपको मैं वो क्या इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्ट, तो वो इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो वो उसकी मैं थोड़ी सी माजरा चाहता। अच्छा, ये आबिद भाई, आप भी आपने अब जिशान भाई को ये वाला हवाला देना है कि ये रूहानी खजान जिल्द 8
यहाँ देखिए मौलवियों को लिख लिख के 1000 लानते दी है। लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, 1000 लानते। ये देखें सफा नंबर 159, 160, 161, 162 तक ये लानते खत्म होती हैं। तो ये जरा इनको जरा करिएगा जी। जी ज़िशान साहब, ये जो मिर्ज़ा साहब ने मौलवियों के ऊपर लानत भेजी हुई है 1000 बार, तो क्या ये मिर्ज़ा साहब मौलवियों के हक में दुआ कर रहे थे? मिर्ज़ा साहब के मैंने खुद अल्फाज सुने हैं मौलवियों के बारे में, ख़ासकर क्या नाम है वो हुसैन जो थे बटालवी साहब और मौलाना अमृतसरी साहब थे, उनके बारे में कहते हैं ये कुत्ता है, ये गूंखोर है। उन मिर्ज़ा साहब की किताबों में लिखा है। तो क्या ये लानत करके उनके ऊपर मिर्ज़ा साहब दुआ कर रहे थे? इस पे थोड़ी रोशनी और डालिए। इसी के एक सफा पीछे आबिद भाई ये मौलवियों के उन्होंने नाम भी लिखे हैं कि मौलवी करमदीन, मौलवी निजामुद्दीन, मौलवी लाही बख्श, मौलवी हमीदुद्दीन खान, मौलवी नूरुद्दीन, मौलवी सैयद अली, मौलवी अब्दुल्ला बेग, मौलवी हसामुद्दीन बम्बई, मौलवी हसामुद्दीन, मौलवी निजामुद्दीन, मौलवी काजी सफदर अली, मौलवी अब्दुर्रहमान, मौलवी हसन अली वगैरह वगैरह। तो ये मौलवियों को ये दुआएं दे रही। अच्छा ज़िशान साहब, ये जो अभी मुफ्ती साहब ने मौलवियों के नाम लिए हैं 12-13, तो क्या मिर्ज़ा साहब ने इन तमाम मौलवियों के ऊपर लानत भेज कर 1000 बार क्या उनके हक में दुआ की है या बददुआ की है? ये बता दें आप। देखिए, मैंने आपको जो पहले अर्ज किया था, आपने अगर वो समझ लिया ठीक है, मैं तो वही कहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी मिर्ज़ा साहब ने कहा है, जैसे भी कहा है, बस वो हक है, उस पर कोई बंदा सवाल नहीं। अच्छा इसको लॉक कर दें जरा, इधर लॉक करें आबिद भाई जरा, इसको लॉक कर दें कि जो भी मिर्जा साहब ने फरमाया है वो हक फरमाया है, ठीक है ना? लॉक कर देते हैं, ऐसे क्या ना? चलें जी। मिर्जा साहब ने फरमाया है कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहते हैं किरमे खाकी हूँ, मैं गंडोया हूँ। वो कहते हैं कि ना आदमजाद हूँ, मैं बंदे दा पुत्र कोई नहीं हूँ, बशर की जाए नफरत, यानी इंसान की जो शर्मगाह होती है वो मैं हूँ। तो फिर तो मिर्जा साहब ने हक फरमाया है जी। ज़िशान साहब जी मौलवी साहब, ये जो आशिया याद, अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये भी बराहीन अहमदिया के अंदर ही है जो मिर्जा साहब कहते हैं मुझे खुदाए जल्लाश ने ये इल्हाम की है जी। मौलवी साहब सुन लेना, देखें ये जो आपकी हाशिया राई है, ये तो आपके नफ्स की हाशिया राई मैंने नहीं की अभी तक। मायने जो आप बयान कर रहे हो, ये गंडोए शिंडोए, ये तो आप बयान कर रहे हो, ये तो आपके नहीं, आप माना नहीं, आप सुन लेना, किरमे खाकी किसको कहते हैं? गूगल पे जाके सर्च करके देख लें, सुन लेना। गूगल के मोहम्मद ना आदमजाद हूँ का क्या मतलब होता है? मैं बंदे दा पुत्र नहीं। चल तू अपना टेढ़ हाली कर ले एक बार। हूँ बशर की जाए नफरत का मतलब इंसान की शर्मगाह नहीं तो और क्या है? बता दें, आप बता दें। अगर मैं गलती पर हूँ, मुझे नहीं समझ आई तो आप समझा दें। जब आपका टेढ़ हाली हो गया, आपका नफस आपको कहेगा कि ठीक है चुप कर जा, तो फिर ठीक बता देना। चले जी, अब आपका टाइम शुरू होता है ज़िशान साहब। हो गया टेढ़ हाली हो गया ਤੁਹਾਡਾ? नहीं कुछ बताएं अब, मैं तो चुप हो गया हूँ। टेढ़ हाली हो मैं तो आपके मलफूजात सुनना चाह रहा हूँ जनाब। बोलिए ना, टाइम जाया ना। बात नहीं करेंगे, ये ऐसे भागते हैं। अब इनके भागने का टाइम हो गया। वो लाख जो बात हुई है उधर ही लाख रहेगी कि मिर्जा साहब ने जो फरमाया हक फरमाया है, बात वो ही रहेगी, बात इधर उधर नहीं आप जाएगी। भागने का टाइम शुरू हुआ जाता है। साहब बहुत बड़ी बात हो रही है, प्लीज म्यूट रखें, बहुत बड़ी बात हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही। ज़िशान साहब इसी बात को जरा आप करें, इसके ऊपर एक बात मुझे भी करने दो यार मुफ्ती साहब। टेढ़ हाली हो गया आबिद भाई, बात ये बात बिखर जानी है। मैंने जो बात लाख की है वो नाराज नहीं होना। मिर्ज़ा साहब की किताब के हवाले से पढ़ रहा हूँ और आपके कौल के मुताबिक आपने कहा मिर्ज़ा साहब ने जो भी कहा सच फरमाया। तो मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं अपनी किताब में, मुझसे नाराज़ नहीं होना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनका हवाला कोट करूँगा उनकी किताब से। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो मेरी बीवी है इसके मरीदों के साथ मरासम थे नजायज़। क्या ये मिर्ज़ा साहब ने सच फरमाया है? ये बात कहीं और चल जा रही है, थोड़ा सा रुक जाए आबिद भाई, एक मिनट। ये भी करते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं जी। आप ऐसा करो, ज़िशान साहब आप अपना पेट हल्का कर लो, जब पेट हल्का हो जाएगा बोलोगे कि आप ठीक, हमने नहीं बोलना, तो फिर जी चुप हो गए हम। एलो जी है मुंह बंद कर लो। टेढ़ हाली हो गया, टेढ़ हाली है जी। ज़िशान साहब आपको क्यों बार बार वो कह रहे हैं, फिर आप वही बकवास कर रहे हैं, ढिड खाली है ढिड खाली, क्या तमाशा बनाया हुआ है?
बात करें आगे। ਸੁਣ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ जी मुफ्ती साहब। यार रिशान साहब फिर मैं आपको बात करूंगा ना, फिर आपको मिर्चियां लगेंगी। मैं मसीह मौत तो नहीं हूँ, मेरा पेट खाली हो जाए, मुझे टट्टियां लग जाएं, 100 दफा टट्टियां करें और फिर पेट खाली हो, ये ना करें। मैं मसीह मौत नहीं हूँ, तो बात करिए, आप जवाब दीजिए। आप हर बंदे को मसीह मौत ना समझ लिया करें। हर बंदे तो मसीह मौत नहीं ना, पेट उदा खाली हो जाए टट्टियां कर करके, इंज ना करो। मेरे सवाल का जवाब दे जी। पेट खाली हो गया हुन? नहीं, मैं टट्टी ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਟੱਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मैं ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? सारा जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਰਾ। नहीं, पेट मेरा मैंने आपके सामने कैमरा ऑन करके, आपका तो कैमरा भी बंद है, मुफ्ती मेरा कौन सा साहब, पेट खाली हुआ है? मुफ्ती क्या साहब कर आप रहे हैं चुप आप? करके बात जरा करिए, 2 बात मिनट का जवाब आप दीजिए। बैठे रहे, ये फिर बोलेगा, नहीं यार तो सुहेल साहब भागेगा। मेहरबानी करें, थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, मेहरबानी। या तो आप मुकालमा कर ले सुहेल साहब, हम चले जाते हैं, कर ले आप बात। मुफ्ती साहब आपका पेट खाली नहीं हो रहा, पहले हाली निशान साहब जवाब दीजिए। आपने कहा मिर्जा कादियानी ने जो कहा है हक का है। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं खाकी हूँ, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की। बताइए, क्या मिर्जा ने ये हक फरमाया है कि ना हक फरमाया है? ਤੁਹਾਡਾ पेट खाली हो गया? फिर यार वेल लो यार, ऐ जे कादियानी है मैं जे कादियानी। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਝਸੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਾਲੀ ਕਰ ਲੋ ਤਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਥਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ कम से कम वो बाहर निकल आवे एक बारी। ये चलो बात भाई, का सबूत है कि आपका पेट उस्ताद खाली हो, मोहतरम ने जो खामोश तीर हो, मारा है वो खाली सही हो, निशाने पे हो। लगा है। हाडा सावन की घटा अल्लाह हाडा साहब बंदी कटा वाह। बदतमीजी पे उतराया है, ये बदतमीजी के साथ तेरा बात पेट खाली हो गया कि और कुछ अंदर है जो बाहर करने वाला? बोले जा रहा है इस ब्राड के ऊपर इस बदतमीजी तरीके से बोलने को आपको इजाजत नहीं है। लिहाजा इंसानों की तरह अगर आपने बहस करनी है, अगर आपने अपने अंदर का करना है, जो भी तो तमीज के जी दायरे के एम अंदर आई बात खान करो। साहब खामोश हूँ, कोई बात साथी सुने और न भाई, बोले, माइक बात म्यूट सुने भाई। रखें। बात सुने भाई, अभी मेरी जाती ब्राड का टाइम शुरू हो गया है, जो मैं 8 बजे करता हूँ, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। लेकिन मैं अभी इसी ब्राड के ऊपर इसी को कंटिन्यू करूंगा, बात समझ लीजिए। जबरदस्त। और मेरी अपनी ब्राड का जो मजाज है वही मजाज मैं इधर भी करूंगा। याद रखिएगा सारे जितने सुन रहे हैं, सिर्फ 2 बंदे इधर रहेंगे, बकाया सब नीचे जाएंगे। मैं इस तरह की ब्राडें नहीं करता कि ऐसे मुफ्ते में सारे बिठा के रखूं। सिर्फ एक बंदे को मैं कॉल पे उठाता हूं और उससे बात होती है, वो जब नीचे जाता है फिर अगले बंदे को उठाता हूं। तो जल्दी जल्दी अब 8 बज गए हैं ते आपकी ब्राड पे कितने बंदे होते हैं टोटल, कितने बंदे होते हैं? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆबिद भाई ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਮਾਜ਼ਰਤ। ਜਮਰੋਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਵੋ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਹਬੀਬ भाई ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਵੋ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। जी जिशान साहब बताइए। जी पहले दसना थोड़ा पेट खाली हो गया? जी हाँ जी, पक्की गल? बिल्कुल। बोलोगे नहीं? जी करो जवाब दियो। दसो ना पेट खाली हो गया ਤੁਹਾਡਾ? हो गया, कितनी बारी सुनना जे कह दिया हो गया। ਤੁਸੀਂ पेट खाली क्यों किते की वजह से अंदर क्यों डकिया हाजिर ने? यार मेरा दिल कर रहा सी कि मसीह मऊद दा भी कोई सुन्नत अदा कर लीए, 100 दफा टट्टी मूत्र कर लीए ते ਉਹ पेट खाली 100 दफा टट्टी करके ही तो खाली ਹੁੰਦਾ है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ मुझे ਕਾਗਜ਼ जवाब दीजिए। आपने फरमाया है कि मिर्जा कादियानी ने जो कहा है हक फरमाया है। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे वही नाजल हुई है ये लाश की तरफ से, काले कालू की तरफ से, कि किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ, मैं एक गंडोया हूँ, मैं बंदे दा पुत्र कोई नहीं हूँ, बशर की जाए नफरत, मैं तो लाम नून हूँ, इंसान की शर्मगाह हूँ। इसका जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब देखो तेरा पेट क्या खाली नहीं आप हुआ तस्लीम यार। करते हैं कि मिर्जे ने हक फरमाया है? मिर्जा कादियानी एक गंडोया है, मिर्जा कादियानी बंदे दा पुत्र कोई नहीं, मिर्जा कादियानी लाम नून है, आप यकीन करते हैं? बताइए। आपने ही फरमाया है कि मिर्जे कादियानी ने जो कहा हक का है, दे जवाब। देखो जिस टाइम काफर जैसा ना वो इसका जवाब दे। काफर कुफर नहीं, काफर कुफर नहीं। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे वही नाज़िल हुई है। आपने कहा जो मिर्जे ने कहा है,
बिल्कुल हक फरमाया। या तो आप कहें मिर्जे ने ये नहीं कहा, खाली नहीं है, तेरा पेट खाली नहीं है, कर लो। बताइए इसका जवाब दे, जवाब दे। कितना टाइम चाहिए आपको? मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूँ, बताइए कितना टाइम चाहिए? टाइम कितना चाहिए आपको? लेकिन फिर बाहर निकल कितना टाइम चाहिए आपको? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बताएं। जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूँ, टाइम शुरू कर देता हूँ, फिर मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। सब ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, बताएं, मैं कह रहा हूँ टाइम बताएं कितना चाहिए आपको जवाब देने के लिए। सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ मैं ਰਿਹਾ। माइक अपना म्यूट करने लगा हूँ, आपका टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट चलें। जी देखो, अगर ते किसी बंदे ने गलत अल्फाज इस्तेमाल कीते मामूर मिन अल्लाह के खिलाफ, ते उन जवाब हो ये जरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता, उन्होंने जेरे मुजम्मम कहते सन, जेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मुजम्मम कह के पुकारते सन, ते अल्लाह दे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ते मोहम्मद हाँ, मुजम्मम किन कहते पे। इस वास्ते अगर ते मुफ्ती साहब तुसी अपने ज़ों विच कुछ अल्फाज बयान करते हो, ज़बान दराजी करते हो, अपने अंदर तक गंद बयान करते हो, तो वो ही जवाब जी जेड़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहाडे भरावां नूं दिता ना। जिस तरह उन्हां बकवास कीता तुहाडे यार, जिस तरह तुसी भौंकदे ओ भौंकदे सन, जिस तरह वो खबास बकदे सन वो सुनदे नहीं सन, तुसी सुनदे नहीं हो, उसे तरह तुहानूं भी ओही जवाब जे जेड़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता। ठीक हो गया। दूसरी गल है वे मामूर में अल्लाह हज़रत मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो भी फरमाया है, जैसे भी फरमाया है, वो बस वही हक है, और तो कोई बंदा सवाल नहीं कर सकता। जी जिशान साहेब, अब आप चाहते हैं कि आपको उतार दिया जाए, आप गलत बात कर रहे हैं। मिर्जा कादियानी पर यहाँ दरूद और सलाम नहीं पढ़ सकते। जाली साहब एक मिनट आज तुसी उन्होंने टाइम लगाया ना, तुसी चुप कर सुनो। तुसी पहला तो मैं गल की थी, तुसी बोले ना नहीं। पहले तो आप अभी ठीक बोलते रहे, लेकिन अब आप भागने के लिए ये बहाना तलाश कर रहे हैं। वैसे कहें आपको उतार देंगे कि मुझे उतार दें, मेरे पास जवाब नहीं है। अब आप ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। यार साहब देखो, अगर मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ना, वो अल्लाह ताला के मामूर हैं। इसी तरह मिर्ज़ा साहब जो है वो भी मामूर में अल्लाह हैं। अब जो उनका मुकाम मर्तबा है, जो उनकी बिग अचीवमेंट है, तो उन्होंने तो ये जीती हुई है। अलैहिस्सलाम ये तो उन्होंने गिवन किया, उन्होंने जीता हुआ है, इसलिए ये तो फ़र्ज है ना। अब अगर आपको लगता है कि मिर्ज़ा साहब ने फलानी बात की है और आपको लगता है कि वो गलत है, वो आपको गलत लग रही है, क्योंकि आपका नफ्स गलत है, आपका कीदा गलत है, और उसी की इस्लाह के लिए तो मामूर में अल्लाह आया है। मिर्ज़ा साहब ने, आपको मैं ये कहूँगा, मिर्ज़ा साहब ने जो भी कहा है, जैसे भी कहा है, आप सब के फ़िरक़ों की इस्लाह करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत होकर कहा है। इसलिए जब तक आप लोग मिर्ज़ा साहब की बात नहीं मानेंगे, उनके फैसले नहीं मानेंगे, आप लोगों के इख्तिलाफ़ात हल हो ही नहीं सकते। आपका मनहज वही रहेगा जो बाकी मुनकरीन का है, जो अंबिया की गुस्ताखी करते रहते हैं, उनके खिलाफ बदज़बानी करते रहते हैं, तो आप वही करते रहोगे। आज भी आप वही कर रहे हो। जी शाह साहब, आपका माइक म्यूट है। शाह साहब, आपका माइक म्यूट है। मैं कह रहा हूँ कि आपको बोलने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2.25 मिनट हो गए हैं आपके। मुझे 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट टोटल चाहिए। हाँ, तकरीर करनी है। आपने ये मिर्जा कादियानी, ये जो अभी पहले ऐसा कर ले, पहले जो अभी आपने चीजें बयान की हैं उसका मुझे जवाब दे लेने दें, फिर आगे बात कर लीजिएगा। ठीक है? एक मिनट भाई रुक जाए, मुझे भी अब 2.25 मिनट चाहिए। जितना टाइम आप लेंगे उतना ही टाइम मुझे चाहिए होगा। ऐसे नहीं, इंसाफ ना भाई, इंसाफ चलेगा, इंसाफ। मैं ये चला रहा हूँ, 1 मिनट है, मुझे भी इतना ही टाइम चाहिए। 1 मिनट रुक जाए जरा। ये मैं स्टॉप वॉच लगा लूंगा अपना टाइम। ये अच्छा जी, आपने अभी कहा कि तुम भौंक रहे हो अब। ठीक है, अब चुप करके इनका चालीस जरा माइक म्यूट करते रहिएगा। इन्होंने मुझे बोलने नहीं देना, मैं इतना बोलूंगा अब ना। इंसाफ। इन्होंने बोलने नहीं मुझे देना, माइक इनका म्यूट करिए। आपने कहा कि तुम भौंकते हो। मैं मसीह मौद नहीं हूँ, मैं मसीह मौद नहीं हूँ, मैं भौंकता नहीं हूँ, मैं मसीह मौद नहीं। इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है मैंने। सुने,
मिर्जा कादियानी कुत्ती दा बच्चा, मिर्जा कादियानी कुत्ती दा बच्चा। मैंने किताबों, तुम्हारी किताबों में साबित किया है। मिर्जा कादियानी कहता है मैं कुत्ती दा बच्चा हूं और कुत्ते का बच्चा हूं। और मिर्जा कादियानी कहता है ये ले जादू वो जो सर चढ़ के बोले। सुने ये अगला हवाला, रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफा 334 के ऊपर मिर्जा कादियानी पूरा सफा लगा दिया मैंने। देखें, कहता है अगर वो मुझ पर राजी नहीं और मैं इसकी निगाह में बुरा हूं तो फिर कुत्ते की तरह क्या 1000 दर्जे कादियान की गली के कुत्तों से बदतरीन कुत्ता हूं। भोंगता कौन है? औ औ औ औ औ औ मिर्जे ने लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है ये औ औ करना कुत्ते का काम है, ये कादियान के कुत्ते का काम है। आप हर बंदे को कादियान का कुत्ता समझ लेती है, मसीह मऊ समझ लेती है, भागे हैं, बस हो गई। ये औकात है, बातें करते हैं, बातें करते हैं, लंगोटे चुके नसंदी कर दे हो। वो अपने आप को तुम लै सलाम कह रहे हो, वो अपने कुत्ती दा बच्चा कह रहा है। तुम क्यों नहीं कहते मिर्जे को कुत्ती दा बच्चा? लै सलाम, उसने तो नहीं लै सलाम अपने आप के लिए, उसने एक दफा भी कहा कि मैं लै सलाम हूं। वो तो कहता है अपने लिए, कहता है मैं कुत्ती दा बच्चा हूं। कहो ना तुम मिर्जे को कुत्ती दा बच्चा, लै सलाम। ओदा मुंह है वे लै सलाम वाला, वो कुत्ता कादियान दा कुत्ता, सब तो बड़ा कुत्ता, लै सलाम। हाँ जी, चले मैं अब कॉलर उठाने लगा हूं भाई, मैं खुद मॉडरेटर हूं, मॉडरेट कर लूंगा। अभी कॉलर कोई नहीं, अभी अपने बंदे नीचे बैठेंगे भाई, अपने बंदे नीचे। कॉल पाओ एक कादियानियों, कॉल पाओ, जल्दी करो। ये मेरी कल नई किताब आई है, इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। मिर्जा कादियानी चोर, मिर्जा कादियानी चोर, योए चोर। और पता है कितना बड़ा चोर था? मैं अपनी हर किताब के अंदर कर रहा हूं कि पूरा स्कैन, कादियानी किताबों का पूरा स्कैन, 12 हवाले लगाए हैं, 12 हवाले असल किताबों के स्कैन पूरे ला देते। जो कादियानी कहते थे 2 लाइनें आगे से पढ़ो 2 पीछे से, मैं कहा पूरा सफा ही लवो, पूरा सफा ही चुको। मिर्जे को चोर साबित किया, चोर कादियानी किताबों से साबित किया है, अपनी तरफ से नहीं। और चोर भी कितना बड़ा, सारी जमा तकसीम तफरीक में की थी जे, मेरी किताब तो पढ़ लिया जाए। देखो जनाब, 3 करोड़ 36 लाख का चोर, मिर्जा कादियानी चोर, कादियान का चोर, मसीह चोर, जैली मसीह चोर। हाँ करो गल। जो कहा है हक कहा है, सच कहा है, तो मनो ना जो उन्हें लिखे है, मनते तो है कोई नहीं। वो कहते मैं चोर हूं, तुसी नहीं मनते। और ऊपर से मिर्जे कादियानी ने कहा है, अभी ये मेरी किताब ज़ेरे तरतीब है, उसके अंदर ये मैं सारे हवाले लेके आऊंगा। मिर्जा कादियानी कहता है जो मेरी किताबों को नहीं मानता, कहता है वो रड्डी दा बच्चा है, ओ गश्ती दा पुत्र जे जड़ियां मेरियां किताबां नूं नहीं मनदा, ओ मेरियां गल्लां नूं नहीं मनदा, गश्ती दा पुत्र है और रंडी दा बच्चा है। ओ कादियानियों मर जाओ, पटारी खोलना जरा, एक मिनट ठहर जाओ। वैसे तो इसके ऊपर पूरी किताब मैं लिख रहा हूँ, वन करीब इंशाअल्लाह ताला वो भी तरतीब पा जाएगी। ये लो, चौंदा एक हवाला ते लवो ना, अगलियां गल्लां बाद चु करांगे। रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफा 547 और 548। वो कहता है मेरी किताबों को सारे मुसलमान बड़ी मोहब्बत और मुवद्दत की निगाह से देखते हैं और इनसे नफा उठाते हैं। भाई नफा तो वही उठाएगा जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं नफा कैसे उठाएगा? कहते सारे मुसलमान नफे उठाते हैं इससे, ते जेड़ा मेरियां किताबां नूं कबूल को नहीं करदा ते नफा को नहीं उठांदा, वो कौन है?
इल्ला जुरियातुल बगाया, रंडी दा पुत्र, गश्ती दा बच्चा, रक्कासा दा बच्चा, नच्चन वाली दा पुत्र, है कोठे वाली दा पुत्र मेरी किताबां नूं नहीं मनदा ना। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਇੱਧਰ आओ, नेड़े आओ, नेड़े लगो। ये देखो अनवारुल उलूम है, जिल्द 5 है, सफा 560 है, और ये 2 नंबर तुम्हारा जो खलीफा है जानी, जानी इब्ने जानी बशीरुद्दीन महमूद, जिसके ऊपर मैंने पूरा रिसाला लिख दिया हुआ है, जानी इब्ने जानी। ये लो चुको दलीला। अच्छा जी, वो लिखता है कि जो किताबें एक ऐसे शख्स ने लिखी हों जिस पर फरिश्ते नाज़िल होते थे। क्या नाज़िल होते थे? फरिश्ते। और उनके पढ़ने से भी मलाइका नाज़िल होते हैं। चुनाचे हजरत साहब की किताबें जो शख्स पढ़ेगा उस पर फरिश्ते नाज़िल होंगे। ये एक खास नुक्ता है, क्योंकि हजरत साहब की किताबें पढ़ते हुए नकात और मुआरफ खुलते हैं, और जब पढ़ो जब ही खास नकात और बरक़ात का नज़ूल होता है। बराहीन अहमदिया खास फिजान इलाही के मातहत लिखी गई है। इसके मुतल्लक मैंने देखा है कि जब कभी मैं इसको लेकर पढ़ने के लिए बैठा हूं 10 सफ़े भी नहीं पढ़ सका, क्योंकि इस कदर नई नई बातें और मार्फत के नुक्ते खुलने शुरू हो जाते हैं कि दिमाग इन्हीं में मशगूल हो जाता है। कादियानियों, तुसी नहीं चाहते बराहीन अहमदिया पढ़ो, जिसके अंदर लिखा है कि किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, न आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। तुसी नहीं चाहते कि तुहाडे ते फरिश्ते नाज़िल होण ते साडे ते भी फरिश्ते नाज़िल होण? है ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਬਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਵੋ, ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਵੋ ਭਾਈ, ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। बात जो भी करें दलील से करनी है, और ये असूल है हमारा। बात हम अपनी तरफ से कोई नहीं करते। हाँ, गाली भी अगर देंगे तो फिर दलील से ही देंगे। बात जड़ी भी करनी दलील नाल ही करनी है। जब मिर्जे कादियानी कुत्ती दा पुत्र भी कहना ना, तो ओदी किताब चो कट के वहां है। अभी ये हमारी ब्राड 5 जगह के ऊपर चल रही है, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। क्योंकि रोज़ाना रात को 8 बजे से 9 बजे तक की मैं बराड करता हूँ, तो मैं सियालवी साहब की बराड पे अभी बैठा हूँ, तो चलो मैंने कहा इधर ही तबरकुन, इधर ही काम शुरू कर देते हैं। हाँ फैसल भाई, उतनी देर हवाला लेके आते हैं। हबीब साहब अगला बंदा चुको, कोई आया जे कलर? जी हजूर, मैं इत्थे मोडिनेटर नहीं है। अच्छा चलो मैं दे। जमरोद खान साहब बैठे ने, कोई सवाल करके फिर खान साहब नीचे चले जाना है। बराड़ का उसूल ये है कि बात करके नीचे जाना है, बैठना नहीं है, फारग नहीं बैठना। सियालवी साहब चूंकि पीछे गए हुए हैं, तो मैं अब बंदे नहीं उठा सकता, क्योंकि जो होस्ट होता है वो बैक पे चला जाए तो हम अपनी वर्किंग नहीं कर सकते। हाँ भाई, कॉलर पाओ भाई, कॉलर आओ भाई। कादियानियों कितने टुर गए हो? तबलीग जारी है, तबलीग जारी है भाई, तबलीग करो भाई, तबलीग करो। मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। मिर्जा कादियानी चोर साबित हो गया, मिर्जा कादियानी चोर ही होए साबित हो गए।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋਏ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋਏ 3 ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰੋੜ ਚੋਰ ਹੀ 36 ਲੱਖ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਰ ਚਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਤੇ ਆਓ ਚਲੋ 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 ਜਲਦੀ ਕਰੋ बैठो कादियानियों बराड़ ते आओ ओए नजीर मिर्जा चोर ही होए नवी किताब भी आ रही है मिर्जा जेब कुतरा वो बाद में वो अगली अगे लिखांगे मिर्जा जेब कुतरा अजय ते मिर्जा चोर ही होए आ जाओ भाई आ जाओ कादियानियों मुफ्त किताबां तुहाडे आस्ते कादियानियों जिन्नू जिन्नू चाहिदियां हुण मेरियां सारियां किताबां मुफ्तो मुफ्त हार्ड कापी चाहिदी है PDF चाहिदी है मुफ्तो मुफ्त लुट्टां पै गईयां भाई लुट्टां पै गईयां कादियानियों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋ ਨਾ ਪੜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੇਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ मिर्जा साबित हो गया भाई कुत्ती का बच्चा मिर्जा चोर साबित हो गया हजरत मसीह मऊद साहब की जय हो झंडे लगे रहे मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारे तक पहुंचाया उधर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਬਾਂਦਰ ਸੁਵਰ ਖੰਦੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਰਾ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਮੌਲਵੀ ਬਾਂਦਰ ਸੁਵਰ ਖੰਦੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा यार YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ YouTube ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਟੁਰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਭਾਈ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ जी हीरो साहब बात करिए हीरो साहब जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी जी जनाब बात करिए मोहतरम माइक जी हजरत कर दिया साहब आपने नहीं हजरत साहब मैं सिर्फ बातें आपके सुनने आया हूँ सर जी अरे नीचे बैठ के सुन लेना वो तो जरूरी काल ही डाल लें आप पता नहीं काल कैसे चल रही चलो जी 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 बड़ी मेहरबानी नीचे बैठ के टैप टैप भी करें निरी सुननी नहीं है फिर नाल टैप टैप भी करें थले बैठ ओके सर सवाल नहीं है तो कोई बात अच्छा भाई काल करो जल्दी जल्दी दुकान खुल गई भाई दुकान खुल गई है भाई आ जाओ भाई आ जाओ कादियानियों मर जाओ टुट पैने हो फिड़की पैने हो लो जी सिर फड़ के बह गई है यार 270 बीमारियां मैं इस किताब से जमा कीतियां ने मिर्जे दी 270 बीमारियां अच्छा बीमारी है ना अगर हुंदी सी ना वो दुनिया दे दूजे कोने ते अमरीका ते अफ्रीका दे जंगलां च ते एमाज़ोन दे जंगलां दे विच कोई वो जंगली जेड़े रहिंदे सन उन्हां नूं कोई बीमारी सी अगर बिलफर्ज वो बीमारी है ना वो जंगलां च उड़दी है हिंदुस्तान पहुंचदी सी हिंदुस्तान च इंज तलाश करदी सी कादियान किथे वे कादियान दे विचों लभदी सी कि हजरत मसीह टट्टी मूत्र साहब किथे रहिंदे ने वो आके हजरत जी नूं चिपक जांदी सी बंदा पूछे पूरे जहान दियां बीमारियां मिर्जे नूं लगियां और फिर हैरत वाली गल तो हुंदा हैरत वाली बंदा क्लेम है करदा कि मेरियां बीमारियां मेरा मोइज़ा है ये मेरा निशान है भाई तुहाडे इस खाना ज़हन च कोई एक बीमारी आंदी है ना सोचो जरा मुंडियो चलो अज अजमैश करनी कोई एक बीमारी थल्ले लिखो तुहानू मैं इत्थों कट के विखा दियां जाओ चलो करो भाई अजमैश कर लो अज तुहाडे ज़हन च कोई एड्स ले हजरत जी सब तो वड्डे एड्स दे मरीज सन बल्कि दुनिया दे पहले मरीज ही एड्स दे मराक पागलपनी दे दौरे वो हजरत जी आंदे ने मेरी 2 दर्द चादरां ने उन्हां चों एक मुहक्किक साहब आए हैं जनाब YouTube पे जी जनाब वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब वालेकुम सलाम
मुफ्ती साहब, मैं अहमदिया का एक मुहक्किक हूँ, तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, उसके बाद मैं बैक स्टेज चला जाऊंगा। नहीं, बैक स्टेज नहीं जाना आपने, इधर रुकेंगे, आप बात करेंगे, ये नहीं है तरीका कोई कि बात करके निकल जाऊंगा मैं। जी करिए बात। ये आपने खुद ही कहा था। बात आपने खुद ही कहा करें, था जब ना कि मैं सवाल करिए, समझूंगा कि इसलिए। जाने का मौका आएगा फिर कर लेंगे। जी करिए बात। अच्छा, सवाल मेरा ये है मुफ्ती साहब कि मिर्जा कादियानी जब यल्लाश से रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था, तो उसकी मक्कत में जो चमूने होते थे वो किधर जाते थे? मक्कत के चमूने किधर जाते थे? हो बड़ी कर दी है। वो असल में बशीरुद्दीन महमूद का एक ख्वाब है कि उसने एक ख्वाब देखा था कि मैं टट्टी करने गया हूँ, वहां जब मैं बैठा हूँ तो मेरी मोरी के अंदर ना खुरक हुई। कहने लगा मैंने ना खुरक अंदर उंगल डाली तो मैंने इंज तलाश कीता, चार चफल्ले मैं उंगल फेरी ते मैनू एक छोटा जिहा चमूना नजर आया कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਿਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ते वो आंदा है जी मैं ना वो उसको फिर ऐसे पकड़ के निकाला है और दीवार के साथ ऐसे लगा दिए। इधरों ने एक मौलवी साहब आ जाते ने, पता नहीं मौलवी अब्दुल करीम या जी कोई नाम है, वो एक मौलवी आ जाता है ते आके उन्हें दरवाजा भी कोई नहीं खड़काया, लटरीन का दरवाजा खुला सी, वो सीधा ही अंदर आया है ते बूआ ना खड़का सोहणीए सीधा ही अंदर आ ते उन्हें आंदे ना जनाब वो चमूने नु ना लित्र मारने शुरू कर, लित्र लाया उन्हें, लित्रो लिथरी उन्हें कुटना शुरू कर। वो अगे लिखे है कि वो चमूना असल दे विच वो कौन सी, वो सी मेरी जमाती अहमदी है, ए मरजई लोग जे कादियानी। जी जनाब। तो इसका मतलब तो ये है ना मुफ्ती साहब कि जमाते अहमदिया का यलाश से भी डायरेक्ट ताल्लुक है ना? बहुत गहरा ताल्लुक है जी, ये हजरत मिर्जा साहब का भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, बहुत गहरा ताल्लुक। और ये इसका जिक्र मैंने अपनी किताब मिर्जा चूड़ा के अंदर बड़ी तफसील के साथ किया है, और उसको पढ़िएगा, अभी छपने के लिए गई है, इंशाल्लाह छप के भी आ जाएगी चंद दिनों तक। तो चूंकि ये जखीम किताब है, 256 सफात की ये मुफ्ती किताब, साहब, इसके अंदर बड़ी तफसील से की है मैंने कि ये चूड़ मिर्जा कादियानी चूंकि चूड़ों का लीडर था, मुफ्ती साहब मैं तो चूड़े जो काम किया करते थे ना वो सारे उसाफ मिर्जा कादियानी में पाए जाते थे। वो जो इमाम दीन ने किताब लिखी थी दीदे हक, उसके मुफ्ती साहब अंदर बात यह है कि आवाज मुफ्ती साहब आप बोलिए, मैं चुप हूँ। हबीब साहब मेरी तरफ से आवाज कट रही है या ये मोहतरम की तरफ से आवाज कट रही है? मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा फिर ਇਹਦਾ मतलब मेरा नेट इथों कमजोर है। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, इधर टिकटॉक के ऊपर कोई कॉलर आया है? और कॉलर आए हैं, चलो इधर से लेते हैं। काशिफ भाई आए हैं। अस्सलाम हाँ वालेकुम काशिफ, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मतलब ये जाहिर अहमद नीचे ना बकवास कर रहा है और इसने शातमियत की है नीचे, जाहिर अहमद ने। ताहिर अहमद जी ओए बंदे दा पुत्तर बनी ओए ज़हीर, बंदे दा पुत्तर बनी, या काल पा इत्थे, ते नहीं ते हुणे तेन मैं ब्लॉक ठोकन लगा हूं। जल्दी कर, कॉल कर, कॉल कर, अभी तुम्हें सिर्फ मैं म्यूट करने लगा हूं, अभी सिर्फ म्यूट करूंगा, अभी सिर्फ हाँ म्यूट, अभी अभी ब्लॉक नहीं किया। कॉल कर, जल्दी कर, बंदे दे पुत्तर बनया करो, आमने सामने आके गल करन दी हिम्मत नहीं तुहाडे च है। टिप 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 टिप। अच्छा जी, एम जुनेस रजा साहब को मैं कॉल पे उठा रहा हूँ। सैयद साहब को उठा रहा हूँ। जी सैयद साहब। जी भाईजान बात करिए।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और मिर्ज़ा मसरूर अहमद, तो सॉरी नहीं कहना चाहिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और मिर्ज़ा मसरूर अहमद के मुंह पर लानत भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है, दुआ दुआ जी हाँ, लानत ये दुआ बतौरे है, दुआ। जी दुआ। और ये जब आप ये मिर्ज़ा हीरा मंडी का दल्ला के नाम से जब आप रसाला छापेंगे ना, तो उसका सारा खर्चा मैं आपको पेमेंट करूंगा। शाह जी माशाल्लाह। वो नहीं ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। जी बेहतर है, ਮਸੀਹ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ। जी ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖेंगे, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛਪਵਾएंगे, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਛਾਪेंगे ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ WhatsApp ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੇ WhatsApp ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਛੜੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਨਹੀਂ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਤੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ। ਸੇਫ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਲੈਂਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 200 ਬੰਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗਾ, ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਬਲੀਗ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਅਸੀਂ। ਅਭੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਨੇ ਆ ਕੌਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, जबड़ियां खत्म हो गई कादियानियों। हाँ बस जब निकल गई जे ना, बस ये हवा अटैट हो गई। 2 वालियां जी हवा अटैट, दौड़ गए, बड़ी टिप टिप लाई साजे। आओ ना इधर मैदान च गल करो। और मिर्जे कादियानी ने सही किया सी, मैदान में निकलना है, मुखनसों का काम नहीं, हिजड़े मैदान में नहीं आते। और हयाते अहमद है, हयाते अहमद में वो कहता है कि इन झूठों की ये निशानी है कि जब इनका गिरेबान पकड़ के कोई पूछे कि इधर जवाब दे के जाओ, तो वहीं घुस जाते हैं जहां से निकले हुए होते, वहीं दाखिल हो जाते हैं जहां से निकले हुए होते। अम्मी जी को जाके कहते हैं अम्मी जी गेट खोलो जरा, मैं जब वापस जाना है। जहां से निकले होते हैं वही दाखिल हो जाते हैं। और कादियानियों निकलो ये बार, वड्डी ऐसी दी तैसी वड्डे तुसी अहमदी बंदे नहीं, अपनियां बराडां दे जबड़ियां मारदे रहिंदे हो पूरा दिन बह के। मासूम ते भोले पाले लोकां नूं कालां दे चुक के एवें ही खातम का मतलब ये है, तो हयात मसीह, तो वफात मसीह, तो जराए नबूवत, तो वो आयत का मतलब ये, तो मतलब ये, तो मतलब ये, तो मतलब ये, मतलब 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 हाँ चंगा मतलब आज विच पाया कौम नूं। इधर आओ ना, साडे नाल गल करो। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। कुरान ते हदीस ते कुरान ते हदीस ते कुरान ते हदीस, ना करो ना गल। हाँ जी जी काशिफ भाई, तोरो अगे काम भाई, तोरो भाई। जी मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, कादियानी चोर चोरी
कादियानी चोरी बचाओ अपना चोर है आओ जरा इधर सामने मिर्जा कादियानी कहता है कि किरमे खाकी हूं प्यारे ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर हूं लख दी लानत मिर्जा कादियानी दे बनना लियो अजो कॉल ते जरा आओ हवाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ हबीब साहब हूं ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ है भाई हबीब साहब शुरू हो हबीब साहब पार्टी शुरू करो एक कॉलर आए जे जी हैदर शाह साहब चले गए हैदर शाह साहब जनाब चले गए नीचे उतर गए ने जी हैदर शाह साहब ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਚੁੱਕੋ ਨੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪੇ हैदर ਚੁੱਕੋ शाह साहब दोबारा कॉल पाओ ਉਹ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਚੁੱਕੋ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ जी मैं चुप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ चुकना वहां थल्ले उतर जाने ने ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਛੱਡੋ दोबारा चुक लो जी मामू हाँ जी भाई मिर्जा कादियानी दे मुफ्त साहब कॉल चुक्या जे हुन मुदस्सर साहब दी कॉल चुको हैदर शाह साहब दी कॉल चुको जी हैदर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शाह साहब आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है जनाब फरमाए वालेकुम अस्सलाम शाह साहब आज आप टिकटॉक पे लाइव नहीं आ रहे जी मैं लाइव टिकटॉक हूँ का अपने इंतजार कर मोहतरम रहे थे उस्ताद ग्रामी अलामा मुफ्ती मोहम्मदीन सियाली साहब की बराड़ के ऊपर हूँ अच्छा सही सही मैं वही इंतजार कर रहा था आज 8 बज के ऊपर हो गया लेकिन ब्रॉड नहीं लगी आप जी जी उधर मैं हूँ लाइव हूँ कोई बात करिए कोई ठीक हो गया शाह साहब बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी ठीक हो ए हबीब जी साहब जी चुको बस फिर ये पूछना था शाह चुक साहब दियो लत्तां कादियानियां दियां चुक दियो आसरा ना करियो जी 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 नहीं मैं नहीं असला करदा जी मिर्जा कादियानी कहंदा है कि अपने आप नु कहंदा है कि मेरा जेड़ा उर्दू में है भाई ना हबीब साहब उर्दू में मैं जी हबीब मसीह साहब हाँ उर्दू में और अपने आप नु कहंदा है कि मेरी अच्छा जी मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं मसीह हूँ और दो चादरों का वो जिक्र भी करता है कि मिर्जा कादियानी कहता है दो चादरें नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट करते हुए कहता है कि दो चादरें जो आई हैं वो मेरे ऊपर उसका आया है वो मैं अभी आपको पेश कर देता हूँ तो कहता है कि दो जर्द चादरों से मुराद फरमाया कि देखो मेरी बीमारी की निस्बत भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई की थी जो इसी तरह वकू में आई आपने फरमाया था कि मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो दो जर्द चादरें इसने पहनी हुई होंगी तो इस तरह मुझको दो बीमारियां हैं एक ऊपर के धड़ की और एक नीचे के धड़ की यानी मराक और कसरत बोल मिर्जा का जी मलफूजात है मिर्जा कादियानी जिल्द दोम सफा नंबर 32 और सफा नंबर 23 वादा इसका है दावा इसका है मसीह मऊद का अब ये इसमें जेरे गौर बात ये है समझने वाली बात ये है कि ये कहता है मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो इसके ऊपर कैसे फिट हो गया ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मुझे सिर्फ ये कादियानियों आकर बता दो कि ये आसमान से कब कहाँ किस जगह ये आसमान से उतरा है जबकि ये तो माई वो चिराग बीबी अलमरूक कसीटी के बदन से पैदा हुआ है तो ये तो झूठा और कज़्ज़ाब अच्छा साबित हो गया कादियानियों आओ ना इसका जवाब दो आकर कि वो कादियानी मिर्जा कादियानी तो कज़्ज़ाब साबित हो गया है वो झूठा साबित हो गया है इस लिहाज से या तो फिर ये साबित करो ना आकर कि किस मीनारे पर कौन से जगह पर ये दमिश्क में कहाँ पर ये नज़ूल हुआ इसका नाजल हुआ और आसमान से उतरा वो कहता है कि मैं
नाजल हुआ हूं आसमान पर से, जब उतरेगा तो मैं उतरा हूं, तो मेरी ही ये चादरें इनके ऊपर ये है कि वो दो बीमारियां, इसने वो दो उस्ताद मुहतरम बीमारियां अपनी हबीब साहब जरा रुकियो भाई, कसरत बोल, हबीब साहब रुकियो भाई उस्ताद मुहतरम एक सवाल है जी। ये कसरत बोल यानी जो ज्यादा बोलता है उसको कहते हैं? नहीं, ये बोल अरबी ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ, ਮੂਤਰ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਹਕਮ ਹੈਗਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਲ ਹਕਮ ਕਾਦੀਆਨ 28 ਅਗਸਤ 1938, ਠੀਕ ਹੈ, 28 ਅਗਸਤ 1938, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 2, ਸਫਾ 2, ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ कि मसीह कादियान ने फरमाया है कि हमें शेर कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बाज़ दफ़ा जब तबीब देखता है कि मरीज़ को मुंह की राह से अब दवा मुफीद नहीं, तो फिर बीमार के लिए हकना तजवीज़ करता है और इस ज़रिए से बीमार की कब्ज़ दूर हो जाती है और वो सेहत याब हो जाता है। बस यही हाल सन ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਲ, सन अच्छा ਸਹੀ जी, ਬੋਲ ठीक है, जरा मैं कर गौर दे ਨਾਲ ਪੜੋ। 1938 ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1908 ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 1938 ਲਈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੁਰਰੇ ਸਮੀਨ ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹੀ ਜੁਮਲਾ ਦੁਰਰੇ ਸਮੀਨ ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਬਜ਼ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਆਪੇ ਕਰ देखो ये देख लो कि देखो बीमार की कब्ज दूर हो एक मिनट, बीमार की कब्ज दूर हो दूर जाती है, हो दूर जाती जाती है, आगे और वो सेहत याब हो जाता है, और वो सेहत याब। अच्छा बीमार तो पीछे वाला एक जुमला लगाओ, आप बीमार तो पीछे वाला भी लिखा देना। एक जुमला, जब तबीब देखता है, जब तबीब देखता है कि मरीज को मुंह की राह से अब दवा मुफीद नहीं होगी, अब दवा मुफीद नहीं होगी, तो फिर बीमार के लिए हाँ बस मैं हूं लभ लांगा इंशाअल्लाह। ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਫਰਹੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ WhatsApp। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि इसके जरिए से बीमार की कब्ज दूर हो जाती है और वो सेहत याब हो जाता है। सो यही हाल हमारे शेरो सुखन का है और तजर्बे से देखा गया है कि बास तबाह के लिए मज़ामीन शेर बनिस्बत मज़ामीन निश्तर के ज्यादा मौसर साबित होते हैं। वो कहते मेरे भी शेरां नाल जिहड़ी है ना लोकां दी कब्ज दूर हो जाती है, मेरा जिहड़ा शेरो सुखन है। और शेरो सुखन ਉਹਨੇ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਗਏ ਆ ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ, ਦੁਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਫਰਹੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਵਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਲਾ ਹਕਮ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਜੇ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ जी, इस जरिए से बीमार की कब्ज दूर हो जाती है और वो ਲੱਭ ਗਿਆ सेहत याब हो ਹਵਾਲਾ जाता ਲੱਭ ਗਿਆ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਢੇਰ ਆ है। ਗਏ ਨੇ तो ਮੇਰੇ यही हाल हमारे शेर सुखन का है। अच्छा
वेल हो गया है, वेल हो गया है, बल्ले हो गया है, बल्ले हो गया है। अच्छा ते ਜਿਹੜੀ हजरत ਤੁਸੀਂ मसीह 185 मऊद ਵਾਲੀ साहब आपको उसको दियां कुछ ते फिर होगा तहकीकां हो रही ने, तहकीकां हो रही ने भाई। कादियानियों वे लो फिर इनियां मर जाओ तहकीकां दे तुहाडे कोल नहीं होईयां, मौलवी करदे ने पे। अल हकम 28 अगस्त ते अच्छा 7 सितंबर भी आए, 28 अगस्त 7 सितंबर ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ 1900। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਪਿਆ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਿਆ हाँ दो जगह बिल्कुल ठीक। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ 1938 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ 1938 ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ ਏ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਜੋ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੁਰੇ ਸਮੀਨ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੁਰੇ ਸਮੀਨ ਤੇ ਵਜੇ ਆ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਦੁਰੇ ਸਮੀਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ठीक है बड़ा बड़ा कीमती वाला है यार, ओए 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 धूड़ा पट वाला है, गल बड़ी कीती है फैसल। हाँ भाई उमर निसार साहब आ गए ने माशाल्लाह। उमर निसार साहब थोड़ी देर माइक कैमरा म्यूट करो, कैमरा म्यूट उमर भाई कैमरा म्यूट करिए। नहीं इंज नहीं हजूर अलैहिस्सलाम दे दरे अनवर दी जियारत एवें नहीं करानी, बिल्कुल नहीं करानी। हजूर दे दर दी जियारत एडी सस्ती नहीं कि जिदों मर्जी कैमरे आन करके असी लोकां नूं ना आओ देखो ना ताओ देखो ते जियारत, ना 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 बिल्कुल बेअदबी है, गुस्ताही है, तौहीन है। बल्कि तुहानूं भी मैं कहांगा कैमरा जेबी च बंद करो, बंद करके जेबी च पा दो। ए पूरे सफरे उमरा दे विच तुसां कैमरा मोबाइल तक नहीं यूज करना, बहुत वड्डी बेअदबी, यह काम नहीं करना ना भाई। अपनी इबादत जाया ना करो, तुसीं इस टाइम मर्ज़े मुकद्दस ते हो ते ए बिल्कुल नहीं। अल्लाह सब नूं तौफीक दवे ते खुद जाके अपनी अखां दे नाल हजूर दे दरे अनवर दी जियारत करन। ए जियारतां दा बिल्कुल मैं मुखालफ हां, ए जियारतां जिहड़े करदे करवांदे ने ए बेअदबी है, तौहीन है। और ना भाई ना उमर इंज नहीं करना ना मेरा पुत्र, अपनी इबादत नूं जाया नहीं करना, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक हो गया भाई, ते 1 घंटे की बराड़ साडी मुकम्मल हो गई है, 1 घंटा ते 5 मिनट की बराड़ हो गई है जी। और 1 घंटे का असी ऐलान किया सी, अलहमदुल्ला असी अपना पूरा कर लिया। सियाली साहब मौजूद ने? सियाली साहब, हबीब साहब बराड़ शुरू करो तुसी। जी ठीक है हजूर। सियाली साहब मौजूद ने? चलो जी काशिफ भाई मैनू इजाजत दिओ भाई, बस मैं इत अज वास्ते इन्ना ही काफी, तुसी थोड़ा जा टोर के रखो ठीक है। ते ठीक हो गया। मैं जावांगा कलर, मैं चुक जाना उन्हां तिकर ते चलो कोई थोड़ी तो गुफ्तगू। मैं एडमन नहीं हूँ, फिर कोई गुस्ताख आया चलो तो कोई फिर क्या गल नहीं, करूं? हो ये सियाली साहब कादियानी आ है, गया, उस्ताद जी दिहाड़ी लगाते जाए। कादियानी आ मैं गया, कोई भी नहीं आया नहीं है, आ गया मियाँ साहब चले है। जी जनाब। कौन? कादियानी हेलो कादियानी भाई जी बोलो। मनसब साहेब, मियाँ साहब मियां साहब, अच्छा नहीं बोलना ते थल्ले पवो जाके, घुगू घूं कौम एवें मुंह चुक के काल पा के ते बह जांदे हो। गल करो जिहड़ी गल करनी, कोई गालां ही कढ दिओ, मर जाओ, कोई कादियानी हो, ये कोई तरीका है? मुंह चुक के आके बह जांदे हो। अच्छा यार मैं चला वा, मैं जाना भी है ते 1 घंटे की बराड़ असी बोली सी, 1 घंटा ते 8 मिनट हो गए ने अलहमदुल्ला, ते इन्ना ही काफी है भाई। ठीक है कबूल करो, उन्हां तक तुसीं थोड़ा टोर के रखो, सियाली साहब भी तशरीफ ले आंदे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔